मुंबई में सड़कों पे क्राइम बढ़ता जा रहा है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और लोग अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये सिर्फ जो है लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है, बुजुर्गों के साथ भी हो रहा है, औरतों के साथ भी हो रहा है। बम्बई में अकेले निकलना ना सिर्फ लड़कियों का, पुरुषों का भी मुहाल हो गया है। आप यदि सड़क पे मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं तो कोई भी बाइक में आएगा, आपको मोबाइल छीन के ले जाएगा। आप कार में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति सामने आएगा, जानबूझ के आपसे टकराएगा और आपसे बहस करेगा, पीछे से आपका बैग, आपका मोबाइल गायब हो जाएगा। हाल ही में कुर्ला में एक घटना घटी जिसमें एक लड़की जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई थी, एक लड़का आया, उसकी चेन खींची और उसने धक्का दे दिया। आती हुई ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई और वो लड़की मर गई। आप कभी भी देर रात या दिन में सुनसान इलाके में अकेले ना जाएं। रात को पार्टी करने के बाद जब आप निकलें तो अकेले ऑटो में ट्रेवल ना करें, क्योंकि ऑटो में जब आप ट्रेवल करेंगे हो सकता है कि वो ऑटो वाला कुछ क्रिमिनल के साथ मिला हो और बीच में वो रोके, दो लोग आए और आपसे सारा पैसा छीन के, आपको मोबाइल छीन के भाग जाएं। आप यदि रात में बाहर निकले हुए हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत हो, किसी भी सुनसान इलाके में अकेले ना जाएं। कितना भी ज़रूरी हो, कितना भी आवश्यक हो, किसी को साथ में लेके जाएं, क्योंकि आप पे हमला हो सकता है। हमारे कैमरामैन राकेश के साथ भी ऐसा हुआ बैंड्रा में। हाल ही में हमारे आसपास के कुछ कोवर्कर्स, कुछ रिलेटिव्स के साथ भी ऐसा हुआ और उनसे हमने बात की और उससे आपको समझ में आएगा कि इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। It's an incident from like 3 or 4 months ago. I was coming back from Bandra to Kandivali after having a couple of drinks with my friends, and I took an auto. It was a 1 hour ride, and it was like 11:30 in the night. So I thought might as well take an auto and go. And yeah, I had a long day at work, and then I had a couple of drinks, so I was kind of tired. I fell asleep in the auto. Next thing I remembered, I had almost reached my home, but there were two strange guys inside the auto, and the auto was still moving. So I confronted them. I asked them to get away, but they didn't listen. They wanted money. They were trying to snatch my bag. Somehow I got out of the auto, and the guys kept chasing me. I tried to run away. That's when I felt something metallic hit my head, and when I felt it, it was bleeding, and I kind of fell down on the road. Though I have not much memory of what happened after that, I remember myself being very scared and I just ran. And I woke up in the morning, I went to the doctor, I had to get like 3 stitches. In hindsight, maybe it could have been far worse, but what scares me the most is that, even in a city like Bombay, and it wasn't that late also, it was right on the Western Express Highway, I was right there on the road. It may not have been that busy, may not have been that well lit at that place, but in a city like Bombay, an incident like this can happen, which I had not imagined myself to experience. So, well, when you consider what I went through, it is quite evident that at some level maybe the auto driver was involved. So, what do you do when you need to access a public transport? How do you ensure that you are safe? Because it's not always that you have people with you to accompany you, even if it's late in the night. So maybe you can at least inform someone about the auto guy's vehicle number. You can always take an Uber or an Ola because at least they have the records of your travels can be traced that way, and the drivers and the car numbers are always recorded. But having said that, this is a very sad state of affairs that बम्बई को ये क्या हो गया है? एक समय बम्बई ऐसा था कि रात के 2-2 बजे हम लोग लड़कियों के साथ आराम से सुरक्षित घुमा करते थे, मगर आज अकेले भी जाने में डर लगता है। आज सड़क में पैदल चलते समय डर लगता है कि कहीं कोई मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई चेन ना खींच ले। ये क्या हो गया मुंबई को? कहाँ है शिवसेना? कहाँ है मनसे? वैसे तो आप उत्तर भारतीयों के नाम पे लोगों पर पत्थर फेंकते हैं, क्या अब आपको नजर नहीं आ रहा है? कहाँ है आपके लोग? कहाँ है शिव सैनिक? कहाँ है मनसे के युवा नेता? क्यों वो सड़कों पे नहीं आ रहे? क्यों वो इस क्राइम को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्यों वो बंबई को बिहार बनने दे रहे हैं? बिहार पे उंगली उठाना बहुत आसान है, मगर क्या बॉम्बे की हालत बिहार से बेहतर है? ये बात शिवसेना को, मनसे को, बीजेपी को, कांग्रेस को और हर उस पार्टी को पूछना चाहिए
जो यहाँ पे सत्ता करना चाहती है, जो यहाँ पे सत्ता की राजनीति करती है। मुंबई में आम आदमी का जीना मुहाल है। मुंबई पुलिस या तो मुंह बंद किए हुए है या कहीं ना कहीं वो इसमें शामिल है, ये तो तय है। सावधानी जरूरी है, कॉशन जरूरी है। पुलिस अपना काम करे ना करे, मगर हमें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। सड़क पे जब आप मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं, बहुत सतर्क रहें। अपने लेफ्ट हैंड पे मोबाइल रखें, राइट साइड पे यदि सड़क है तो। लेफ्ट हैंड पे सड़क है तो अपने मोबाइल को राइट हैंड साइड में रखें या अपने पॉकेट में रखें। कोशिश करें कि सड़क पे चलते हुए मोबाइल पे बात ना करें। कोशिश करें कि आपकी चेन फ्लैश ना हो, क्योंकि वो आकर्षित करेगी और ये जो बदमाश हैं ये मोबाइल लेके गायब हो जाते हैं। ये पूरे गैंग है जो मलाड में, जो बैंड्रा में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, कुर्ला में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। इन इलाकों की पुलिस क्या कर रही है मैं नहीं जानता, मगर यदि मुंबई के क्राइम आंकड़ों को देखा जाए तो यही वो इलाके हैं जहां पे सबसे ज़्यादा चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। पुलिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते।